Personal Officer, Northern I Railways. feel honored to welcome and introduce Mr. Manoj Kumar. He is a highly accomplished professional with a wealth of experience in human resource management and industrial relations. Currently serving as the Chief Personnel Officer of Indian Railways, Northern Region, and alumnus of Allahabad University and a BE in Civil Engineering from MNR Engineering College, he began his career as a software engineer with Tesco and a civil engineer with IOC before joining the Indian Railway Personal Services in 1994. His expertise spans over 15 years in various workshop divisions and production units, where he aptly managed HR functions for both gazetted and non-gazetted staff, notably as a Deputy Chief Personnel Officer for the East Central Railway. He achieved a remarkable milestone by finalizing 10 Group B selections in just 10 months, including 2 selections in a record 54 days. His leadership earned him the prestigious Emmer Award from the Railway Board in 2004 and the Personal Branch Efficiency Shield in 2008. Additionally, his initiative to streamline the joining process for railway recruitment candidates has significantly improved operational efficiencies. His commitment to innovation is evident from his role in developing the Employee Master and ESR systems, enhancing data collection across Indian Railways. His dedication to excellence and impactful leadership continues to inspire those around him. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Manoj Kumar. Good afternoon, everybody. Sorry, I joined the session really late. हमारी ये flight थोड़ी late हो गई और थोड़ा कल हम लोग के पास समय थोड़ा कम था. I'm a hardcore HR man without HR training because we come through civil services, only HR civil services of India in government, Indian Railway Personnel Service, engineer. गलती से IRPS मिल गया तो HR के आदमी बन गया. So I'm there, a person who has a bit of software in his mind, a bit of engineering is in mind, and trying to handle HR, trying to handle about 13 lakh odd people in railways. So what I am talking to you is not exactly the whole scenario of railway. I'm talking about 2 small case studies, okay? So what we try to do in field, usually we are a field officer. I have been heading different organization, strength of 10,000 to 1.42 lakh in last 25, 30 odd years. Being in field for almost 16, 17 odd years. And then I am usually credited for computerizing HR of railways. Devendra is here from a railway, though it's not in my ministry anymore. But so you can understand where railways stands because computerization has taken place only 5 years back in HR. But still, whatever little we can do, because the numbers perspective जो हमारा है वो थोड़ा अलग है. जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो बात करते हैं 10,000 की कंपनी, 20,000 की कंपनी. जब मैं अपने यहाँ बात करता हूँ, इनिशियल कंप्यूटेशन जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग 13 लाख की बात कर रहे थे. 13 लाख वर्किंग प्रोफेशनल, 20 लाख रिटायर्ड आदमी और 33 लाख गुने 4. तो 1.2, 1.3 करोड़ people whose data we are supposed to save, we are supposed to keep, we are supposed to maintain, and we are supposed to work on that. That's the extent on which we are working. So at times, whatever you do, percolating the idea and getting it done at the end of the day becomes a difficult task. So I'll talk about 2 small case studies. The basic idea, मेरे हिसाब से काम करने का तरीका ये होता है कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के परेशानियों को समझें, उनकी दुखती रग क्या है, और तब उसका एक ऐसा उपाय निकालने की कोशिश करें जो आपके नियमों के अंदर आता हो. Because we are bound by rules, and railway is very rule bound thing. जो अभी हमसे पहले सर बात कर रहे थे कि वो DA केस जो उन्होंने लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया और उसके बाद उनका करेक्टिव मेजर हुआ. It will really heartening to note कि railways has a very laid down approach for DR actions where we do everything as per book. So that's where we are. So I'll just go for my first case study. Okay, so fine. So एक पहला छोटा सा केस स्टडी है हमारा. I'll just give you a small perspective of what railway is all about. We are having about 13 lakh people working with us, okay? Out of this 13 lakh, about 18,000 are officers, out of which about 50% are one who comes through UPSC.
हमारे पास स्टाफ जो लेवल वन का मतलब, जैसे रेलवे से आपका मतलब केवल टिकट चेकिंग से होता होगा, स्टेशन मास्टर जो ट्रेन चलाता है उसको आप देखते होंगे, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ी फौज होती है जो रेल चलाती है. सो वी आर हैविंग अबाउट 9 लाख वो स्टाफ है जो कभी कभी आप ट्रेन पे जाते होंगे तो आपको वो ट्रेन के पत्थरों को बीनता हुआ आदमी दिखता होगा जो उसको साफ करता है. दे आर कॉल्ड गैंगमैन टू अस, हम लोग उसको ट्रैकमैन कहा करते हैं. सो वी आर हैविंग 9 लाख सच पीपल वर्किंग विथ अस हु आर इन लेवल 1. लेवल 1 इज इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड फॉर रेलवेज. सॉरी 3.3 लाख हैं हमारे लेवल 1 वाले और बाकी स्टाफ 9 लाख हैं, तो करीबन 12 लाख स्टाफ हमारे साथ काम करते हैं. सो आई एम गोइंग टू give you a case study about initial appointment of employee in railways. Way back, I'm talking about 2013 when I was posted in Dhanbad. और हम लोग के हमारे पास जब कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करने आता था तो जो यूजुअली हम लोग जो ज्वाइन कराते हैं, एक साल में एवरेज एंट्री जो होनी चाहिए 3% यदि आप मांगेंगे हमारे आउटगोइंग को, एवरेज एंट्री पर ईयर शुड बी 39,000 since we don't have recruitment every year. So usually at times entry is about 1 lakh, 1.5 lakh in a year itself. So we had a panel of level 1 in Dhanbad where we have got 2,200 people joining in railways. Now joining in railways have lot of stages. A person who comes to us, usually joining is handled by people at lower down. Our clerk, our junior officer handles them. Different department agencies are involved. Joining मतलब एक बंदा आपके पास आएगा, वो जब ज्वाइन करने आएगा 2-3 दिन चक्कर लगाएगा, फिर उसको अपना पोस्टिंग ऑर्डर मिलेगा, फिर उसका अपना पास मिलेगा, फिर वो अपने यहाँ ज्वाइन करेगा, फिर उसका एक सर्विस कार्ड बनेगा, फिर उसके लिए और जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं साइलोज में काम करते हैं, अकाउंट उसकी तनख्वाह बनाने की अलग कार्रवाई करेगा, जो डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है वो उसकी ज्वाइनिंग की अलग कार्रवाई करेगा. इस तरह और वो आदमी जो हमारे यहाँ ज्वाइन करने आता है उसकी ज्वाइनिंग की पूरी प्रक्रिया ख़त्म होने में महीनों का समय लग जाएगा. और ये समय दोनों तरफ से लगता है, उस कर्मचारी का भी और हमारे सिस्टम का भी. सो नेचुरली वो बंदा जब ज्वाइन करने आता है तब वो अपने गांव, अपने घर का एक बड़ा आदमी होता है जिसे एक सरकारी नौकरी मिल चुकी होती है, जिसके शादी के बाज़ार में जिसकी मांग बढ़ चुकी होती है. लेकिन जब वो हमारे यहाँ ज्वाइन करता है और जब 1 महीने इस प्रोसेस से गुजरता है तो उसकी मानसिक यंत्रणा की आप कल्पना कर सकते हैं. सो गोइंग इनटू इट व्हाट ऑल वाज टू बी डन, जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट गोज, लेट यू ऑल अंडरस्टैंड. सो ही हैज़ टू गेट अ पोस्टिंग ऑर्डर, ही हैज़ टू गेट अ ज्वाइनिंग पास, ताकि वो जब हमारे ऑफिस में आता है वहाँ से अपनी जगह वो जाएगा. उसका एक आई कार्ड बनना है जो वो अपने साथ लगा सके. उसको एक सर्विस रिकॉर्ड बनना है. पहले हम लोग फिजिकल सर्विस रिकॉर्ड बनाया करते थे, उसमें सारी एंट्री हुआ करती थी. उसका एक आजकल नॉन पेंशन स्कीम है, हम लोग पुराने वाले हैं, न्यू पेंशन स्कीम है, तो उसका एक पेंशन का पूरा फॉर्म है जो बड़ा एग्जॉस्टिव फॉर्म होता है, 3-4 पन्ने भरे जाते हैं उसके, और फिर उसका एक बैंक अकाउंट भी खुलना है ताकि तनख्वाह उसमें बन सके. नाउ द होल थिंग वॉज टेकिंग मोर देन अ मंथ. I'm talking of the initial phase of 2013 when I was posted in Dhanbad and we just took a call that the whole thing has to be done in a day. So from 30 days to doing the same thing in a day. Now you are trying to make a process for the same, and I'm trying to talk to you about the process. So first thing was I am an engineer, and so पहली बात थी ऑपरेशनल रिसर्च पे आप जाते हैं, CPM चार्ट बनाते हैं बैठ के कि यार ये 5 हमारे काम हैं, कैसे ये काम होगा, फ्लो कैसे बनेगा और सारा काम एक दिन में कैसे होगा. यदि आपके पास 2000 आदमी एक बार ज्वाइन करने आया है, आई हैड SBI इन माई कैंपस, SBI फ्लैटली रिफ्यूज कि हम तो भाई हमारा तो काम करने का एक तरीका है, आप मेरे यहाँ आएंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे, 3 या 4 दिन का समय लगेगा, फिर आपका अकाउंट खुलेगा. बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो उसका पैन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सर्विस रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, उसका तनख्वाह फंसेगा, और आदमी वापस एक बार अपने यहाँ चला गया ज्वाइन करने तो फिर तो आप भूल ही जाइए पूरी कहानी को. फिर महीने का वो कभी आपका ख़त्म नहीं होने वाला है. Now, I'm having a personal officer who is signed on his SR. I'm having a concerned engineering department officer who is involved for his posting and things like that. And an account officer जिसको पकड़ना आप सब जानते होंगे बड़ा मुश्किल होता है. अभी कोई अकाउंट का नहीं बैठा है इसलिए हम बोल सकते हैं, सामने होता तो हम कुछ और बोल जाते हैं अभी. And there is a process flow. Like भाई जब तक बैंक अकाउंट यदि आपको खोलना है तो एक इंट्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए SBI में, जिसका उस अकाउंट में हो, उस आदमी को जानने वाला होना चाहिए. भाई वो बिहार का आदमी है, पोस्टिंग उसकी महाराष्ट्र में हो रही है, महाराष्ट्र में बैठा पड़ा है अपना ज्वाइनिंग कराने के लिए. समझिए उसको कहाँ से आदमी ढूंढना पड़ेगा और कहाँ से आदमी पकड़ना पड़ेगा. And there are bottlenecks which are talked of, and of course coordination, which is only a word in government, okay? जिसको हम लोग केवल सुनते हैं इस कान से और इस कान से निकल जाने देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आदमी का अपना एक ईगो होता है हर डिपार्टमेंट का, और सब एक साथ कभी बैठने को तैयार नहीं होता. And then somebody has to monitor this execution where all the things are to be done. So from a process which was taking about a month, and we have come to a day where, believe me, it is being done in a day. Fine.
So I'm talking about that initial process for the first time. Luckily, I was the one who has done at one place. A lot of my friends have done it at other places also. So what we did was, हमने कहा था हमारे पास 2000 आदमी ज्वाइन करने एक बार आ रहे थे. Don't take it otherwise. 2000 बहुत सारे कंपनी का स्ट्रेंथ भी होता है. So I went to SBI and said कि यार मैं तुमको 2000 अकाउंट दूंगा, यदि तुम तैयार हो मेरे कैंपस में आके बैठने के लिए तो ठीक, वरना मैं किसी प्राइवेट बैंक के यहाँ जाता हूँ. His regional manager came running to me, said क्या सर आप क्या कह रहे हैं. तो एकदम आपके यहाँ 4 आदमी बैठेगा और पहली बार SBI की हिस्ट्री में जीरो बैंक अकाउंट का एक वो बुक ये बना था जो अकाउंट अपने आप खुल जाता था. एक किट बनाया उन्होंने जीरो बैंक अकाउंट का जो हमको मिला था. देन आई सेड कि ठीक है 200 आदमी आता है, तुम 200 कुर्सियाँ ऑफिस में लगा दो. माई बॉस सेड कि यार ये तुम कैसे कर रहे हो, हंगामा मच जाएगा, मारपीट हो जाएगी, तुमको RPF लगाना पड़ेगा, पुलिस लगानी पड़ेगी. 200 लोग अपने परिवार के लोगों के साथ आपके कैंपस में आप करेंगे कैसे. मैंने कहा छोड़ दो, मेरा आदमी है, कल से मेरा एम्प्लॉई होगा, पकड़ में आ गया तो देखेंगे क्या होता है. सो 200 people per day were supposed to come to me. Believe me, they are the people who are never going to get chair in their life. So I said, let us put in 200 chairs in a field with sticks of their roll number on every chair, so we can identify the person beforehand. So we said, we are having inspectors with us. एक welfare inspector हमारे साथ होता है. तो I said हर 20 आदमी का नाम लिख के एक इंस्पेक्टर को थमा दो सवेरे सवेरे, और पहले वो रिपोर्ट जो करेगा उस इंस्पेक्टर के पास अपनी कुर्सी पे बैठ कर रिपोर्ट करेगा. सो वी नो whoever the person has come and who has not come there. शुरू से काउंट हमारे पास रहेगा. देन वी सेड इंडिविजुअल चेयर्स विथ रोल नंबर उनका लगा रहेगा. मेरे पास कोई फोटोग्राफ नहीं है 2013 का. नेवर रियलाइज कि मुझको कोई प्रेजेंट करना पड़ेगा. सो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग बिफोर यू द आइडिया व्हाट वी हैव इम्प्लीमेंटेड अबाउट. एंड व्हाट वी डिड वाज विल कम टू एंड प्लानिंग वाज कि शाम में जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग उसको सारा डॉक्यूमेंट देंगे और उसको पोस्टिंग ऑर्डर देंगे और इंश्योर करेंगे भले ही रात के 9 बज जाए, बट काम सेम डे खत्म होना है. सो काम क्या क्या करना था. एक पोस्टिंग ऑर्डर हमको देना होता है बंदे को कि भाई आप हमारे यहाँ ज्वाइन करने आए हैं, ट्रैकमैन है, मैं धनबाद में हूँ, आपकी पोस्टिंग मैं बरकाकाना कर रहा हूँ जो मेरे यहाँ से करीब 12 घंटे का एक रास्ता है, और आपको वहाँ जाके ज्वाइन करना है. सो आई सेड लेट अस से आउट ऑफ 200 पीपल 10% हम एब्सेंटी मान लेते हैं प्री हैंड कि 10% आदमी मेरा नहीं आ गया, नॉर्मल एब्सेंटी होती है हिस्टोरिकली, बाकी की हम पोस्टिंग आज ही कर देते हैं पहले प्री डिसाइडेड. सो आई गॉट अ पैनल. आई सेड लेट अस हैव पोस्टिंग प्री डिसाइडेड पोस्टिंग. आई हैव आपके यहाँ यदि 10 आदमी की जरूरत है, मैं आपके यहाँ 10 को पोस्ट कर देता हूँ. एक नहीं आएगा मान लीजिए, ओवरऑल पैनल हमारे 9 आएगा या 8 आएगा, कोई बात नहीं, थिंक पहले से डिसाइड हो जाए. वाई शुड आई वेट फॉर द पर्सन टू रिपोर्ट टू मी फॉर हिज पोस्टिंग टू बी डिसाइडेड. सो पोस्टिंग ऑर्डर वॉज रेडी फॉर मी. माई बॉस एग्रीड एंड पोस्टिंग ऑर्डर वॉज रेडी विथ मी. सेकेंड वॉज प्रिपेयरिंग एन आई कार्ड. आई कार्ड में आप उस बंदे का एक फोटोग्राफर आएगा, उसका फोटो खींचेगा, फिर एक आई कार्ड बनेगा, फिर किसी एजेंसी के पास जाएगा, उसको लैमिनेट कराएगा. मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, 13 की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है. तो आई सेड फॉरगेट अबाउट इट, लेट अस हैव अ प्री प्रिंटेड आई कार्ड जिसमें उस बंदे का हम नाम लिखेंगे, डिटेल हाथ से भरेंगे. एक आप वो हार्ड पॉलीथीन वाला जो आता था कवर, वो उसमें उसको रखेंगे और एक फीता पहले से बना रहेगा धनबाद मंडल का, उस पर लग जाएगा वो, और एक मेरा ऑफिसर वहाँ बैठेगा जो उस पर साइन कर देगा. हमको उस पर एड्रेस लिखना होता है, एड्रेस उसके ऑफिस का रहेगा जो हम पहले से पोस्टिंग ऑर्डर में डिसाइड कर चुके हैं. सॉरी इट्स गॉन टू 0. मैं आई टेक जस्ट 1 मिनट फिनिश ऑफ, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट वाला है, गवर्नमेंट हम लोग टाइम कभी कभी एक्सीड करते हैं. आई होप यू विल बियर विथ मी. सो आई सेड फोटो कैंडिडेट अपना लेके आएगा, बिकॉज फोटो खींचने में और बनाने में हमको समय लग रहा था. देन आई सेड एड्रेस पोस्टिंग ऑर्डर का रहेगा. साइनिंग अथॉरिटी हमारे एक ऑफिसर वहाँ बैठेगा. मतलब मेरे पास वहाँ पे करीब, मैं एक वहाँ का हेड था, सीनियर DPO था, मेरे पास 4 नीचे APO थे और 2 DPO था, 6 और ऑफिसर मेरे पास. एक ऑफिसर वहाँ बैठ रहा था, साइन करता था उस पर. बैंक अकाउंट द मोस्ट क्रूशियल. आई सेड टू यू, SBI का रीजनल मैनेजर वॉज काइंड इनफ टू अलाउ हिज ऑफिसर टू सिट इन माई ऑफिस विथ 0 अमाउंट किट, जिसमें वो पहली बार डेबिट कार्ड भी, हम लोग डेबिट कार्ड नहीं बाकी सब चीज़ें दे रहा था, पासबुक रखा हुआ था, अकाउंट रखा हुआ था, अकाउंट का नंबर रखा हुआ था, उसको केवल आदमी का नाम लिखना था जिसकी पोस्टिंग हो रही थी. दीज आर द थिंग्स. रिक्वायरमेंट जो हमारी होती थी बैंक अकाउंट के, एक ऑफिशियल इंट्रोड्यूसर चाहिए. हमारा एक ऑफिसर जिसका अकाउंट SBI में था, उसको हमने वहाँ बिठा दिया साथ में कि यार हर आदमी के बैंक अकाउंट पे तुम इंट्रोड्यूसर में साइन करोगे, दैट्स इट. फोटोग्राफ साथ में वो लेके अपना आ रहा था. एड्रेस हमारे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की थी. ओरिजिनल ID, आधार, पैन, जो भी एक ID उसके पास हो वो बंदा लेकर आया था. तो बैंक अकाउंट खुलना जो सबसे मुश्किल काम था, जिसमें हमको हफ्ता दिन का समय लगता था, वॉज डन इन मिनट्स देयर. देन पास तो एक बार हमारा आदमी बनाता है, इसमें कोई इशू नहीं था. एक बार हमें पोस्टिंग पता है पहले से, एक बार उस बंदे ने रिपोर्ट कर दिया, आई नो कि बंदा सवेरे रिपोर्ट कर चुका है, पास सेक्शन का आदमी बैठा, उसने उसके लिए पास बना दिया ग्रुप में. सर्विस रिकॉर्ड इज़ अ डॉक्यूमेंट, आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा. एक बुक होती है जिसके पहले पन्ने पे उस आदमी का फोटो लगता है, उसकी डिटेल लगती है, वो अपना साइन करता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है, कोई साइन करता है उस पर. नाउ ऑल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल विथ अस. तो वी सेड कि सर्विस रिकॉर्ड खोलने के लिए वो आदमी दोबारा मेरे यहाँ नहीं आएगा, सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, सब कुछ एंट्री कर दीजिए एक्सेप्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग के.
और साइन कर दीजिए। जब वो आदमी ज्वाइन करेगा और हमको उसकी चिट्ठी आ जाएगी तब डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लिख देंगे। द पर्सन डिड नॉट कम टू मी अगेन। देन वी टॉक पैन का फॉर्म 4 पढ़ने का पुराना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, उसको भरने में हमें भी दिक्कत हुआ करती थी। इसके लिए प्री रिक्विजिट हमारी होती है एक बैंक अकाउंट नंबर, और सबसे मुश्किल काम होता है अकाउंट ऑफिसर साइन करवाना, जिसकी गलतियां ढूंढने का माइक्रोस्कोप जो रेलवे का जो एक देखने का उनका तरीका जो होता है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे मुश्किल चीज़ होती है पार पाना। वी हैड अकाउंट ऑफिसर सिटिंग देयर हु यूज्ड टू इंश्योर दैट एवरी पैन फॉर्म इज प्रॉपरली फिल्ड इन। आई कार्ड का नंबर, अकाउंट का डिटेल, बाकी चीज़ें हमको प्री रिक्विजिट में मिल गई थी। Final check was very simple for us. Now what we did was, we knew what bottlenecks are, so we have, yeah sure, half minute more. So we have 4 into 4, 16 counter for everything being done. And at the end of the day, once everything is through, what we said कि जब शाम में जो भी समय हो जाए हमारे पास आएगा तो उसके गले में उसका एक हम आई कार्ड पहनाएंगे, उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसको उसका पोस्टिंग ऑर्डर देंगे और उसके पास का उसको हम एक पास उसको थमा देंगे, और I will be sure that the person has got everything in his life and he will not be coming to me again for the same work. Going forward, this was replicated over all over Indian Railways. Now, in all over Indian Railways, this work is done in a day only. It's more important about taking care of his staff who are at the lowest rung. The day he joined and when he was given a chair, जहाँ उसका केयर लिया गया, शायद दोबारा लाइफ में कभी ना लिया जाए उस लेवल पे. So उसकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो वहाँ पे बनी थी. और हमारा मैंडेट जो सेविंग एक्चुअल टर्म में हुआ था, इट्स ह्यूज. इफ अ पर्सन हैज टू स्पेंड अबाउट 15 odd days, you can think of 15 into that number of people, and moreover my office timing which was saved. So I'll close at one only because second one will take again more time. That's it. Thank you very much, Banerjee. On behalf of United Council for Ancient Wisdom and United Global Peace Foundation, I thank Mr. Manoj Kumar for sharing his views. Thank you so much. It was wonderful to know